जी अस्सलाम वालेकुम। Okay students, okay we are waiting for few more students to join. मैं मैसेज तो दे दिया उन्हें, let the other students join too. Okay, sir. Okay. Okay, so we start with the same equation again. Actually इसमें थोड़ा सा इन्होंने चूंकि अप्रोक्सीमेशन जो है वो एक लाइन से नहीं दिखाई है और आगे पीछे कर दी है, इसलिए थोड़ा सा ज़रा दुश्वारी हो रही, बट एनी हाउ we start from here that f is primarily is equal to this is the given model, and what we did is we use this expression for that case, and similarly we use the whole expression here to represent a non-linear equation. So after the substitution, what we get is a relation which is shown like this. Okay. So this is the mainly the relation which can be used to have a linearized control, which is called the feedback linearized control, and we can design a controller to achieve this. और वो हमने जो है इससे आगे वाली जो स्लाइड है उसमें कंट्रोलर डिजाइन की एक एग्जांपल जो है उसको देखेंगे कि इफ वी यूज ए पी एंड डी कंट्रोलर फॉर दिस, ओके, पी डी कंट्रोल, that mean proportionate and the derivative control. So if we can use that controller, so how we can primarily use that controller by using the relation y is equal to q. That means output is equal to the variable q. So we start from here. In practice, we transform the original linear process into a linear process by using double integration, whose state space model is given by. So the state space model, which is derived from the earlier part, is given like this, that x dot is equal to A. We know that this is the A matrix, and similarly B matrix. And why we know that the C matrix and D matrix is here is 0. Okay. यहाँ पे जो है वो D matrix जो है शो नहीं है. So what we do is use the identity matrix inside the A to linearize, to get a linearized. Then we can now use a linear methods to find a controller for V, जो कि primarily अब हमारी state V में convert हो चुकी है ना, जो कि primarily हमारी input है. V is the input in this part, क्योंकि x जो है वो तो हमारी state है, and x dot is the derivative of our state. That results in adequate closed loop performance for the output y is equal to q. So if we use a PD control,
then we can use V input as primarily by using these two gain, जो कि proportionate में तो हमारे पास gain होता है Kp, and similarly a derivative gain Kd. So we can primarily represent V in term of state, a relation which primarily bind the input for this equation to the state of that system. And when we replace this to this 2.8 equation, we get the system which is represented with the equation below. इसको मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, बट इज अ क्लोज लूप डायनामिक्स. इसी चीज़ को जो है आगे डायग्राम की सूरत में दिया हुआ, उसमें भी हमें थोड़ा सा टाइम लगाना है, बिकॉज दिस कंसेप्ट विल कम अगेन, जिसमें हम एक पूरा जो केस स्टडी करेंगे और उस केस स्टडी में एक जो है वो हम फीडबैक लीनियराइज कंट्रोलर जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं. तो अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं, सो वी हैव द input u, and that input is primarily fed after multiplication. We get primarily this value. After multiplication we get the non-linear input, and then this non-linear input is fed to this. So this output is also fed to the input, and then it is multiplied obviously because there is no input is shown from here because of the closed loop nature. So it is just multiplied with this, and then to generate this input V for the as the output of the controller. ये controller की output है, और उसके बाद देन वी हैव द इंटरनल सिस्टम जो कि इस इक्वेशन की मदद से जो है वो बनाया गया है यू की मदद से, इन विच वी नो दैट कि जब हम इस इक्वेशन जो है इसमें ये एम क्यू डबल डॉट ऐड करेंगे, देन वी गेट द एक्सप्रेशन. ये हम पहले कर चुके हैं जब हमने डायग्राम बनाना सीखा था कि किस तरीके से हम जो है वो इसकी डायग्राम बनाते हैं. तो इसमें एक चीज़ जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, वो ये है कि चूँकि ये एक जनरल इक्वेशन है, एंड इन दिस इक्वेशन देयर आर सम मिसिंग एलिमेंट्स. वो मिसिंग एलिमेंट्स क्या है? वो मिसिंग एलिमेंट ये है कि देयर इज आल्सो इन रेफरेंस इनपुट here, and there's also a reference equilibrium point here. That reference is U reference, so that the system work close to the equilibrium point. And similarly we have the reference point which is primarily used at this sum as well. ये चीज़ जब हम नेक्स्ट केस स्टडी में सीखेंगे तो फिर हम हमारे लिए इस तरह का एक सिस्टम का जो कंप्लीट डिज़ाइन हमारे सामने आएगा वो ज़्यादा इजी होगा. थ्योरी में हमें थोड़ा सा इसको समझने में और इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा दुश्वारी जो है उसका सामना. ओके, मूविंग अहेड टूवर्ड्स ए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज. और ये एक्सरसाइज जो है बिकॉज ओनली डिफरेंशिएशन एंड algebraic manipulation is used and the system is given in the form of equation, so we have to identify the components and then we need to solve this equation. So local linearization around equilibrium based on a system which is a sliding mass. So consider a mechanical system consisting of a mass m sliding on a horizontal bar and connected to a spring with constant k as shown in figure 2.6. So we have a sliding mass and we have a spring constant, and we similarly we have a bar horizontal displacement given as z,
and height is given as h. So when the spring is not stretched, its angle with horizontal is equal to 45 degrees. So angle is also given. When a force F is applied to the mesh, the horizontal displacement Z of the system evolves according to the following equation. So the equation is given, and in equation you can see that we have the displacement and we have a double derivative of the displacement, and similarly we have uh, a nonlinear relation here in the form of z square as well. Okay? So this is the equation which is given. This is the system which is given. अब हम देख लेते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है. ओके, दूसरी स्लाइड पे जाने से पहले ये एनोटेशंस जो है ये मुझे हटानी पड़ेंगी. ओके, so here the same diagram which we have shown earlier, and the equation, and the first part A is compute the nonlinear state space model of the system. ओके, और स्टेट स्पेस मॉडल मालूम करने के लिए द इनपुट इज द फोर्स. अब हमें ये देखना होगा कि इक्वेशन में यू जो है ये कहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ. सो दिस इज एफ and the output is the horizontal displacement y, which is z. Okay, so we now use z primarily is y. Write the model in this form, जो कि प्राइमरली एक नॉन लीनियर जो सिस्टम है उसका मॉडल है, एंड टू रिप्रेजेंट यूज द appropriate vector for vector x and the function f and g. अब हमें जो है इसको इस फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि हमारे पास जो है वो एक जो है वो इक्वेशन स्टेट और उसके डेरिवेटिव के साथ, और एक इक्वेशन जो है वो आउटपुट इक्वेशन के साथ हमें मालूम है. सो लेट्स सी कैसे हम इसको किया है किताब में. बेटा आपका कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन. ओके, सर ये जो हम कर रहे थे ये एक स्ट्रेच स्प्रिंग के लिए था या नॉन स्ट्रेच स्प्रिंग के लिए? क्योंकि के की वैल्यू हमें जो है नॉन स्ट्रेच स्प्रिंग के लिए दी गई है. के की वैल्यू जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के तौर पे दी गई है. आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जब ये स्ट्रेच होगा तो कांस्टेंट की वैल्यू वेरी होगी? सर मेरे जो समझ में आया है वो यही है कि जो है के की वैल्यू जो है वो स्ट्रेच के लिए डिफरेंट होगी शायद. इसमें पहले आपका सवाल रिपीट कर लेते हैं. आपका सवाल जो है ना वो के और के बारे में जो है वो जो गिवन क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि के जो है इससे इट्स कनेक्टेड विद ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के. तो इसमें जो के की वैल्यू दी गई है वो एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई है. ठीक है, ठीक है सर. क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन से ये क्लियर है. सही है सर, सही. अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? ओके, okay, so we take x as x1 and x2. एक मिनट जरा, ये एक कॉल आ रही है, जरा मैं इसको
ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें थोड़ी सी कम्युनिकेशन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम में हो रही है। एनी हाउ, मैं हमसे कह दिया बाद में बात कर लीजिए। ओके ओके, वी स्टार्ट हियर दैट वी टेक ए स्टेट वेक्टर x1 x2 विद z एंड z, जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, and because we have to represent x dot as function of x and u, so by taking the first derivative of x we get the x1 dot and similarly x2 dot, और इसी तरीके से z जो है इसके ऊपर भी एक डॉट आ जाएगा और z के ऊपर टू डॉट्स आ जाएंगे if we take the first derivative. So this is our choice and we take the first derivative, and by taking first derivative we get the derivative of z and similarly the double derivative of z. Then by using the original equation जो हमें दी गई है, अगर हम यहाँ से देखें तो m को अगर हम दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वेशन के, we get the value of z double dot, और इस वैल्यू को हमने जो है वो इस वेक्टर में डाल दिया। Okay, so by doing this we get the expression for our state vector and the input vector जो कि f x और u की फॉर्म में, and now because y is equal to z, और यहाँ से अगर हम देखें तो z can be written as x1, यहाँ से ये इस जगह से z can be written as x1. So because y is equal to z, ये थोड़ा सा चूंकि नजर नहीं आ रहा, मैं थोड़ी देर के लिए फ्लोट हाइड कर रहा हूँ. Now you can see the full screen. Now because y is equal to z, we can directly write as g of x, जो कि x1 होगा from this equation. तो ये पहला जो हमारा पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है, और इसमें हमने कहा क्या गया था कि एक स्टेट स्पेस मॉडल जो है वो नॉन लीनियर सिस्टम का मालूम करें, और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ अज्यूम की है कि वेक्टर x is equal to x1 x2, it has two components and the first component is assumed as z, the second is the first derivative of z. तो आमतौर पे जो बहुत सारे सिंपल इक्वेशन जिनमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है, दे कैन बी अप्रोक्सीमेटेड इन दिस वे, इस वे उनका स्टेट स्पेस मॉडल जो है वो बनाया जा सकता है। इसको थोड़ा सा यहाँ समराइज भी कर लेते हैं ताकि जो है वो चीज़ों को थोड़ा समझने में और आसानी हो जाएगी। कि हमें जो है वो एक इक्वेशन दी हुई थी जो ये, और हमें ये कहा गया कि ये एक मॉडल है और इस मॉडल को आप स्टेट स्पेस में कन्वर्ट करते हो। स्टेट स्पेस में जो मॉडल है वो हमने बाय डेफिनेशन कि x डॉट इज इक्वल टू फंक्शन, और इसको f से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिमिलरली द आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड एट g। ओके, दोनों में ऑब्वियसली they are function of state and the input vector, and this is the similarly it is also function of the state and the input. Okay, तो ये चीज तो समझ में आ गई कि यहाँ से हमने इसको ये बनाना है। then we assume one state vector, and by using that state vector we then take the first derivative, and after taking first derivative we replace the value of z double from the equation, and we get what is required, that is the function, and similarly the output function. So this is how it works. जो सबसे इसमें important चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी assumption है कि जब आप किस तरीके से state vector आपने choose किया है, the rest of the things just follows. चूँकि ये किताब में example दी गई है, इसके साथ थोड़ी और डिटेल्स जो है वो भी किताब के अंदर मौजूद है। I have just extracted the information from there, and this is a solved example. इस एग्जाम्पल में एक चीज़ देखिएगा, किताब में इराटा है, इराटे से मुराद ये है कि कुछ जो है वो एक दो जगहों पे कुछ मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, वो मैंने इराटे से देख के ठीक कर दी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जहन में रखिएगा।
नो द सेकंड क्वेश्चन इज, एक मिनट मैं ये फ्लोट हाइड कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि इनको समझने में, पूरी स्क्रीन देखने में हमें थोड़ा आसानी हो जाए. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज कंप्यूट ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फॉर द सिस्टम जो कि जो हमारी इनपुट है ना उस पर जीरो हो जाए. So in that case, जो when u is zero, the equilibrium points have the solution. अगर आप यहाँ देखें u को हम अगर जीरो रख लेते हैं तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो जहाँ जहाँ u होगा वहाँ वहाँ हम उसको जीरो से रिप्लेस करें. तो ये फिर हमारे पास ये वाली टर्म जो है ये खत्म हो जाएगी u ओवर टाइम. ठीक है, तो जब हम इसको u रखेंगे तो हमारे पास एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आ जाएगी. ये जनरलाइज्ड इक्वेशन जो होगी इसके अंदर जो है जब हम डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो x के पुट करेंगे, बिकॉज वी कैन अज्यूम दैट दिस वैल्यू इज आल्सो जीरो, और जब हम इस वैल्यू को जीरो रख के इक्वेट करेंगे देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो ये x1 की वैल्यू जीरो होगी या फिर ये जो एक्सप्रेशन है ये जीरो होगी, बिकॉज मैथ जीरो नहीं हो सकता, कांस्टेंट वैल्यू ये जीरो नहीं हो सकती. तो जब हम इन चीज़ों को जो है वो जीरो रखेंगे देन देर आर टू पॉसिबिलिटीज, इधर x1 इज जीरो या फिर ये जो अंदर जो टर्म है ये जीरो हो जाए. और इसकी कंडीशन क्या है जीरो होने की, कि ये जो वैल्यू है ये वन हो जाए, क्योंकि वन माइनस वन ही जीरो होगा. तो इस सूरत में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जनरेट होगी. अब मैं थोड़ी देर के लिए ऑन करूँ एनोटेशंस ताकि इसको थोड़ा सा हम समझ लेते कि ये इन्होंने कैसे किया है. ओके, दिस इज अ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन. जब हम u को जीरो पुट करेंगे बिकॉज u इज पुट है, then we further simplify it and we get that there are two conditions in which x1 can be zero. This is one condition. Then x2 can be with these. This is a second condition. क्योंकि x1 की वैल्यू हमें मालूम करनी है, then we further simplify it. When we further simplify it, we get this expression. Now there are two possibilities that x1 can be plus h, और यानी जो जो हाइट है उसकी that can be plus h और minus h. तो there are 3 points टोटल जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनते हैं वो 3 बनते हैं. एक तो 0 0 के साथ बनता है, 0 0 के साथ बनता है, और अगर हम x1 को पहले लिख रहे हैं और x2 को बाद में लिख रहे हैं, एक x1 एंड x2. और दूसरा जो है वो बनता है h 0 और तीसरा बनता है माइनस h 0. और यही जो है ये नीचे जो है ये दिया गया. एक मिनट फ्लोर हटाना चाह रहा हूँ. So as you can see, x2 is 0 in 3 cases. x1 is h and x1 is minus h and x1 is similarly 0 to make these 3 equilibrium points. तो इसको रिपीट कर लेते. We are to compute the equilibrium points जो कि for the zero input case. तो हमें दिया गया कि input is 0, so we take the input equation and we put 0 into the input equation and then find the values for x1 and x2. And after computation, we then find the values for x1 and x2 for these 3 equilibrium points. जी स्टूडेंट्स, यहाँ आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है? मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है वो ये किताब में मिस प्रिंटिंग है. तो अगर आप किताब की वेबसाइट पे जाएंगे देयर इज एन एराटा किताब के क्या जो है वो, तो इट मेंशन के यहाँ एक जो है ना थोड़ी चेंज. मूविंग अहेड, उससे पहले मुझे ये एनोटेशंस हटानी होंगी क्योंकि ये एक अलग लेयर होती है एनोटेशन की. Okay, part C is that compute the local linearization of system around the each equilibrium point. Now we have to consider each equilibrium point and then
we need to compute the Jacobian, and we can calculate direct value of Jacobian as well. So the value of A, B, C, and D can be computed by using the partial differential for F and G, जो कि हमने मालूम किया है, और उसके बाद then we put the value for each, जो हमने input जो है वो मालूम किया है उसके लिए. Then we put the values for x2, x1 is equal to h, and similarly we put the value for x2 is 0 and x1 is minus h, and x2 is equal to 0 and x1 is 0. Then we get the following answers for this primary function. तो अब हमें सिर्फ इसमें जो वैल्यूज पुट करनी है, तो जब हम देखेंगे तो बी, सी और डी तीनों मैट्रिसेस जो हैं वो डिपेंड नहीं कर रही उन पे x1 और x2 की वैल्यूज के ऊपर. सो ओनली द मैट्रिक्स विच इज इम्पेक्टेड इज ए. तो ए के अंदर जब हम रखेंगे वैल्यू x2, किसी एक पॉइंट को पहले कंसिडर कर लें, x2 is equal to 0 and x1 is equal to 0. जब हम ये वैल्यू रखेंगे then we have this x1 value is 0 here. तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो h2 को कंप्यूट करेंगे, तो 2 with cancel with 2 and 3 with then cancel with above 3 and we get a2 square root minus 1. ओके, ये जो एक्सप्रेशन है ये वाली आएगी हमारे पास. For this we get this expression. And similarly, when we take, for example, the upper one, when x2 is equal to 0, या ऊपर या ये दोनों में से कोई भी ले लें, क्योंकि ये h का स्क्वायर हो रहा है ना, सॉरी x1 का स्क्वायर हो रहा है ना, सो वी गेट h स्क्वायर ऑटोमेटिकली. इसीलिए ये दोनों वैल्यूज जो है ना ये सेम है फॉर दिस पॉइंट एंड फॉर दिस पॉइंट. जो हम इस जगह पे वैल्यू रखेंगे और हमारे पास ये कंप्यूटेशन होगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द थर्ड पार्ट इन विच वी आर टू कंप्यूट द लोकल लीनियराइजेशन ऑफ द सिस्टम. जी, यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई आपका सवाल है? मतलब ये सब समझ में नहीं आ रहा है, ये सब अजम्पशन पे होता है, यानी नॉन लीनियर सिस्टम जो होते हैं हमारे पास उसमें अजम्पशंस हम कर रहे होते हैं मुसलसल, और उसके बाद जो है वैल्यूज को मतलब जैसे जीरो कर रहे हैं, कभी किसी को जो है वो छोड़ रहे हैं. अच्छा, बिलाल का जो सवाल है वो ये है कि क्या ये हमारी एजम्पशन पे है. देखिए, इसमें जो चीज़, एक मिनट मैं ये नोटेशन हटाना चाहूँगा कि एजम्पशन प्राइमरीली किस जगह पे थी, उसके बाद जो है ना फिर आपके सवाल का आंसर. पिछले जी जी बिल्कुल, मैं हमने फीडबैक तो देखा है पिछले, जी ये जी तो एक यूकोपियन तो समझ में आ रहा है. ठीक है बिलाल, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप अपना सवाल रिपीट कीजिए प्लीज़. जैसे हमने पीछे जो हमने फीडबैक के थ्रू जो हमने देखा, लीनियर किया हमने चीज को, इन इक्वेशन की हमारे पास, हमने उसको लीनियर बनाया है, नॉन लीनियर को लीनियर किया है थ्रू फीडबैक सिस्टम के लिए हम. उसके अंदर सेकंड पार्ट, डी पार्ट था वो, उसके अंदर जो है वो हमने जो है वो चीज़ों को वहां पे हमने इनपुट को जीरो करके और फिर निकालना शुरू किया, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आई बात, यानी किस तरीके से उन्होंने निकाला ये वाली. बिलाल, मैं आपके सवाल को पहले रिपीट करता हूँ. आपने ये कहा कि बी पार्ट में ये समझ में नहीं आया कि ये जीरो हमने कहाँ से जो है वो लिया है, यही सवाल है ना आपका? जीरो तो समझ में आ रहा है सर, आपने बताया ना कि इक्विलिब्रियम के अंदर इनपुट हम जीरो कर रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इनपुट जीरो हम सपोज कर रहे हैं एक तरीके से, इक्विलिब्रियम है वो. ये तो बात समझ में आ रही है. बात समझ में ये नहीं आई मुझे कि ये जो x2 की वैल्यू जीरो का हो रही है, यानी ये किस तरीके से इन्होंने फाइंड किया है, यानी मतलब ये जो. ठीक है, समझ में आ गया. देखिए, पहली चीज़ जो है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए मैं फ्लोट जो है ना इसको नीचे कर रहा हूँ. ओके, और आपका ये जो क्या कहते हैं, ये जो, क्योंकि ये ब्लैक नज़र आता है ना, ये रिकॉर्डिंग में मसला यही है. ओके, अब आपका सवाल जो है ना उसको बयान करने से पहले मैं इसको स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ कि कंप्यूट ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम फॉर द जीरो इनपुट
और ये चीज जो है ना ये गिवन। इस चीज से एक चीज जो आपने कंफर्म की कि ये समझ में आ गया कि यहाँ हमें जीरो पुट करना, वन थिंग इज क्लियर। लेकिन ये जो x है प्राइमरली, ये कैसे पता चले कि x की हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, ये आपका सवाल है। जी सर। ठीक है ना, ये आपका सवाल है प्राइमरीली। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो सिस्टम डिस्क्राइब किया गया है एफ एक्स और जीरो में, इसमें जो एक्स वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक्स वन और एक्स टू। और यही हमारी अजम्पशन है जो आपने पूछा ना कि जो अजम्पशन है वो क्या है। और और ये अजम्पशन हमने क्वेश्चन यानी इसके पार्ट ए में की थी। और अब हम इस जगह पे वही जो रिजल्ट हमने ये पीछे जो फंक्शन निकाला था, ये जो रिजल्ट हमने फंक्शन का निकाला था, इसी को यूज करेंगे क्योंकि इसमें x1 और x2 की वैल्यूज मौजूद है। देखिए इसमें x1 भी है, अगर आप देखें x1 भी है और x2 भी। तो उसने हमें ये कहा है कि आप इक्विलिब्रियम पॉइंट मालूम करें जिसमें हमारे पास जो इनपुट है ना वो नहीं है। ये चीज तो समझ में आ गई जी बिलाल। जी सर, ये तो समझ में आ गया ये वाली बात। दूसरी चीज, अब उसने कहा है कि आप वो तमाम x मालूम करें। तो x कैसे मालूम होंगे, जिस तरीके से हम जो है वो x1 और x2 मालूम करेंगे तो x मालूम होगा ना। तो x मालूम करना है इस कंडीशन में ये जो दी हुई है, तो उसके लिए हमने x2 और x1 मालूम किए क्योंकि x1 और x2 ही x को बना रहे हैं। और कंडीशन सिर्फ एक है कि हमने उसको जीरो रखा। जब हम उसको जीरो रखेंगे, प्राइमरीली u को जीरो रखेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि u को जीरो रखने से पहले तो ये वाली टर्म हमारी गायब हो जाएगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है वो क्या है। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये है कि इक्विलिब्रियम जो है उसके ऊपर जो फंक्शन है वो जीरो होता है। ये समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम में फंक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। ये इस केस में जिसमें हमारे पास जो है नॉन लीनियर सिस्टम, क्योंकि हम इसमें एफ एक्स इक्विलिब्रियम रखेंगे और यू इक्विलिब्रियम रखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो होगी। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो प्राइमरीली आगे अगर मैं यहाँ लिख दूं कि ये जीरो जीरो होगा, तो ये मेरे ख्याल में ये बात जो है वो अब समझ में आनी, आपकी आपके सवाल का आंसर अब मिल जाएगा। ठीक, अब जब हम इसको जीरो जीरो रखेंगे तो x2 भी देखें जीरो हो गया और ये टर्म भी जीरो हो गई। अब ये सारी जो जो कैलकुलेशन है वो तो फिर आपको पता सिर्फ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है बिलाल, ये चीज समझ में आई। सर ये समझ में आ गई, अब समझ में आ गई सर। हाँ, ये इसको डेफिनेशन को देख लेते हैं, एक मिनट में ये जरा एनोटेशन हटाता हूँ। आप इसकी जरा डेफिनेशन देखें कि इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है वो क्या है ना, क्योंकि ये स्टेप इसने कुछ स्टेप मिस किए हैं। मुझे अंदाजा है कि ज़ाहिर है एक ग्रेजुएट लेवल की ये किताब है तो वो सारे स्टेप्स नहीं दिखाएगी। हाँ, इस डायग्राम में भी, इसमें भी है कि this point is an equilibrium point if the f the function is zero। तो ये तो उसने जीरो दे दिया ना उसने, और x जो है वो हमने x1 और x2 रखा हुआ है, तो फंक्शन को भी जीरो रखना पड़ेगा।
ठीक है, ये चीज समझ में आई है? जी सर, समझ में आ रही ये मेरे ख्याल में ये एक मिसिंग पॉइंट था जो आपने आइडेंटिफाई किया है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब हम थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। थोड़ा क्विकली, तो ये टॉपिक तकरीबन ख़त्म हो गया। ओके, so last two slides are primarily based on the computation of Jacobian through MATLAB। कि MATLAB में हम किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा उसकी थ्योरी है। अगर आप राइट साइड में देखें तो राइट साइड के अंदर आपको जो है वो इसका कोड नजर आएगा कि कंप्यूट द जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर एक्स प्लस टू with respect to the variables are given x y z। तो उसमें जो है वो सिम्बॉलिक टूल बॉक्स इसका यूज है सिम्स। तो मैटलैब को पता चल जाता है कि एक्स वाई जेड जो है ना ये वेरिएबल्स है। देन वी टेक द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो वो इनका जैकोबियन जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट कर देता है। जैकोबियन मैट्रिक्स जो है वो इसके कैलकुलेट कर देता है। ऑब्वियसली पहले कॉलम में अगर आप देखें तो वो इनको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा है, और दूसरे में देखें तो y के रिस्पेक्ट से, ये दूसरा कॉलम जो बन रहा है ना इसमें उसको y के रिस्पेक्ट से कर रहा है, और तीसरे कॉलम में जो है वो उसको z के रिस्पेक्ट से जो है वो डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है जैकोबियन के कैलकुलेशन है मैटलैब के अंदर। और जैकोबियन क्या रिप्रेजेंट करता है? जैकोबियन रिप्रेजेंट करता है लीनियर, जो लिनियराइजेशन ऑफ ए सिस्टम है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सिमिलरली देयर इज अनदर एग्जांपल जो कि प्राइमरली सिम्पाई में बताई गई, एंड दिस इज ऑनलाइन। और ये एक वेबसाइट है जहाँ आप जाके इसको प्राइमरली कोडिंग कर सकते हैं, और कोड में जो है वो आप बता सकते हैं कि जो है वो x एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो ये कंपोनेंट है, एक रो कॉस फाई है, यानी ये रो कॉस फाई है। एक मेंबर इसका जो है वो रो साइन फाई है, और एक मेंबर इसका जो है वो रो का स्क्वायर है। और उसके बाद आप y मैट्रिक्स जो है उसको एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद आप x का जो जैकोबियन है वो विद रिस्पेक्ट टू y मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो जो है वो जैकोबियन को कैलकुलेट कर देगा, और हमें जो है वो जैकोबियन नजर आना शुरू हो जाएगा। ये जो x है ये सेकंड एग्जांपल का है, ये एक सेकंड एग्जांपल से रिलेट कर रहा है लास्ट टाइम भी। तो x is then redefined as a matrix with रो cos phi एंड रो sin phi। तो x जो है ये एक वेक्टर होगा, और मैट्रिक्स में ये एक ही कॉलम होगा इसके अंदर, और इस कॉलम के अंदर जब हम इसको जैकोबियन मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, जिसमें जो है रो फाई जो है वो प्राइमरली वेरिएबल्स हैं, तो पहले रो के लिहाज से इसको डेरिवेटिव लेगा। तो जो फाई है ये कांस्टेंट है, तो कॉज और साइन ही आ जाएंगे पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में जो है वो विद रिस्पेक्ट टू फाई लेगा, का डेरिवेटिव माइनस में आएगा, माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव कॉस में आएगा। तो इस तरीके से पाइथन के अंदर जो है वो जैकोबियन को कैसे कैलकुलेट करना, और ये ऑब्वियसली ये जो है वो लीनियर अप्रोक्सीमेशन में आएगा। ओके, दिस एंड द टॉपिक ऑन लीनियर approximation and linearization of control through Jacobian। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है linearization through feedback। तो एक दफ़ा हम देख लेते हैं, ये तो लेक्चर स्लाइड सेट 2 की बात कर रहे थे हम, अब लेक्चर स्लाइड सेट 3 में जाएंगे।
अच्छा, इसमें जो है आई हैव टेकन ओनली फीडबैक लीनियराइजेशन, और इन्हीं तमाम कंसेप्ट जो हैं इनको हमने एक दफ़ा जो है वो री किया है, यानी दोबारा से रिवाइज किया। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं तक रखेंगे, इन 2 सेशन तक ही रखेंगे, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें फिर हम ये फीडबैक लीनियराइजेशन की जो केस स्टडीज़ हैं इनको गो थ्रू करेंगे। तो जो भी आपके सवालात हों आप इसको थ्रू करें। इसमें जो है वो पहले हमने रिवाइज करने के बाद पहली स्टडी डीसी मोटर की है, इसी तरीके से दूसरी केस स्टडी जो है वो पेंडुलम की है, और इसी तरीके से तीसरी केस स्टडी जो है वो एक व्हील्ड मोबाइल सिस्टम की है। तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक